second chapter from moments. Okay, as yesterday I already gave the introduction about the chapter, and chapter name is The Adventures of Toto. Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. Here, now, just let me know. Yesterday I told you people who was Toto. Toto was monkey. Yeah. Even I explained you the theme of the chapter. Right now, let's start. Okay. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. ग्रैंडफादर टोटो को लाए टोंगा ड्राइवर से कितने रुपीज में? 5 रुपीज में. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रो एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. ओके, अब वो मंकी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, वो कैसे रहते हैं. और बाद में जो ग्रैंडफादर थे जो टोंगो को लेने वाले थे, 5 किसको लेने वाले थे? टोटो को लेने वाले थे टोंगा ड्राइवर से. वो बोलते हैं कि अब उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि इस लिटिल फेलो को यानी टोटो को वो उनके जू में ऐड करेंगे. टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी, वो बहुत प्रीटी मंकी था. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ. स्पार्कल्ड मतलब एकदम ब्राइटली उसकी आंखें, मीन्स स्पार्कल्ड मीन्स शोन ब्राइटली, विद मिस्चीफ बीनीथ मीन्स बिलो deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of old age person. Now see, monkey का पूरे जो उसके कैरेक्टर्स हैं उसको डिस्क्राइब किया गया है. एंग्लो इंडियन लेडीज उसके बारे में कहा है, मंकी के बारे में कहा है. Who is the monkey? Toto. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. उसके हाथ ऐसे रूखे सूखे लग रहे हैं. क्यों? क्योंकि as though they had been pickled in the sun for many years. जैसे उसके धूप में जैसे हम कोई चीज रखते हैं, जैसे वो मुरझाने जैसी हो जाती है, वैसे उसके हाथ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है. Yet his fingers were quick and wicked, मतलब फिर भी उसके फिंगर्स एकदम जल्दी जल्दी क्विक एंड विकेड. विकेड मीन्स एकदम नॉटी थे. एंड हिज टेल while adding to his good looks, grandfather believed a tail could add to anyone's good look. मतलब वो grandfather believe करते थे कि tail जो है वो किसी के भी good look में add कर सकते हैं. Also served as a third hand. उसका जो tail था, already उसके 2 hand थे, तीसरा था उसका tail. Okay, वो उसके tail को भी as a third hand use करता था. He could use it to hang from a branch. एक branch से दूसरे branch में जाने के लिए वो उसे use करता था. And it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. And it was capable of, see, scooping up मतलब किसी भी चीज को जल्दी lift करना. In English it means scooping up means, please note this down, lift quickly any delicacy. Delicacy यानी कोई भी softness को that might be out of reach of his hands. उसके hands के बारे में आप describe किया है टोटो की. Grandfather always fused when grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animal. Grandmother जी जो थी वो हमेशा गुस्सा बताती थी जब grandfather किसी भी नए एनिमल या बर्ड को घर पे लाते थे तब. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret. फिर क्या डिसाइड किया गया कि टोटो का जो प्रेजेंस है, जब वो ग्रैंडफादर टोटो को लेके जाएंगे तो उसको जो लाएंगे उसका जो प्रेजेंस है उसको एज अ सीक्रेट रखेंगे. From her until she was in a particularly good mood. मतलब ग्रैंडमदर से कब तक छुपाएंगे? जब तक उनका एक अच्छा मूड नहीं हो जाता है तब तक. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely. Also we thought to a peg fastened into the wall. अब वो सारा डिस्क्राइब किया कि उन्हें उसे कहाँ रखा था और कहाँ. Okay, and he was tied securely मतलब उसे कहाँ बांध के रखा था. And what is closet means a cupboard. A few hours later मतलब थोड़े घंटे बाद क्या हुआ? When grandfather and I came back, जब grandfather और वो वापस आए to release Toto, okay, जब Toto रिलीज करने आए, we found that the walls which had
ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज द नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, मतलब जो सारा पेपर से जो कवर किया था, अब से वहां पे ब्रिक एंड प्लास्टर दिख रहे थे। इससे हमें पता चल रहा है कि वो मंकी कितना नॉटी था। The peg in the wall had been wrenched from its socket. The peg in the wall had been pulled. Wrenched means pulled, ठीक है। जो पेग था उसे क्या कर दिया था, वॉल पे उसको पुल कर दिया था। उसके फ्रॉम इट्स सॉकेट मीन्स अ होल, जिसमें फिट करने के लिए था, उसे हम लोग बोलते हैं सॉकेट, अ होल टू फिटिंग। प्लीज नोट दिस डाउन। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो स्कूल ब्लेजर उसका हैंग हो रहा था वहां पर, उसकी बात कर रहे हैं वो, किसमें हैंग हो रहा था, वो जो सॉकेट है वहां पर, वॉज इन श्रेड्स। श्रेड्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से। अब वो सोच रहे हैं, राइटर सोच रहे हैं कि है ना, अब ग्रैंड मदर क्या बोलेंगे, बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस। बट ग्रैंडफादर क्या हो गए, वो टेंशन नहीं ले रहे थे, वो प्लीज हो गए किसके परफॉर्मेंस से, टोटो के परफॉर्मेंस से। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या बोल रहे हैं कि टोटो क्लेवर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप। अभी जो ग्रैंडफादर टोटो को बोल रहे हैं वो क्लेवर है, और ये भी बोल रहे हैं कि अगर उसे हम टाइम दे तो हो सकता है कि ये जो सारे हमने उसने टुकड़े किए वो उसका एक रस्सी भी बना देता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और ऐसा भी हो सकता था कि रस्सी बनाकर और वो इस विंडो से निकल जाए। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। अभी तक घर में टोटो है, ये अभी तक सीक्रेट रहा, उसकी प्रेजेंस है वो अब तक सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर। उसको अभी कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, बड़े से केज में, जहाँ पे सारे सर्वेंट्स के जो क्वार्टर्स थे वहां पर। When a number of grandfathers pet lived very sociably together, मतलब एम्बिएबली, जहाँ पे सारे जो ग्रैंडफादर के सारे जो एनिमल्स और ये पेट्स थे, जैसे टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल, टेम मतलब एक पेट स्क्विरल, ओके, TAME मीन्स PET, पेट स्क्विरल, एंड फॉर अ व्हाइल माय पेट गोट। But the monkey wouldn't allow any of his companion to sleep at night. But ये जो monkey था, ये किसी को भी, सब में से किसी भी उसके companions को सोने नहीं देता था रात को। So grandfather who had to leave देहरादून next day, जो grandfather है जिनको next दिन देहरादून के लिए निकलना था, to collect his pension in सहारनपुर, उनका पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर में, decided to take him along। तो जैसे कि वो सोने नहीं दे रहा था, वो बहुत मिस्चीवियस, बहुत नॉटी था, तो ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया, वो नेक्स्ट डे जब देहरादून जाने वाले हैं उनका पेंशन कलेक्ट करने के लिए, वो उसे साथ में लेके जाएंगे। किससे लेकर जाएंगे, टोटो को। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, मतलब अनफॉर्चुनेटली मीन्स अनलकीली वो उसके ग्रैंडफादर के साथ जा नहीं सकते थे। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। अब उसके बारे में ग्रैंडफादर ने बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बड़ा सा बिग ब्लैक कैनवास प्रोवाइड किया गया था टोटो के लिए। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड। अबॉर्ड मीन्स उसका नया रेसिडेंस बन गया। When the bag was closed, there was no escape. जब बैग बंद कर दिया तो उसका कोई भी एस्केप्शन नहीं, वो कोई जंप नहीं कर रहा था, ऐसे कोई मूवमेंट्स वगैरह कुछ एस्केप नहीं कर रहा था। टोटो could not get his hands through the opening, मतलब अगर खोल रहे तो वो उसके हैंड्स भी नहीं निकाल पा रहा था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, मतलब उसके दांतों से भी नहीं काट पाया, इतना स्ट्रॉन्ग था कैनवास की जो बैग थी। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल। अगर वो बैग के अंदर बंद है, जिप बंद है कैनवास बैग की, तो सिर्फ एक ही चीज हो सकती थी, अगर जितनी मूवमेंट्स करेगा तो बैग सिर्फ रोल होगा। Out about on the floor or occasionally jump into the air, not frequently, अगर वो jump होगा तो, but that's not possible, right? An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. An exhibition means a public show that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform, पूरा describe किया है। Toto remained in the bag as far as सहारनपुर, कब तक रहा वो, सहारनपुर तक। But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head. जब ग्रैंडफादर उनके टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे रेलवे स्टेशन पे, टोटो ने क्या किया, सडनली उसने उसका सर बाहर निकाला। पोक, ओके, पोक मतलब उसका सर बाहर निकाला वो बैग से। एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, मतलब उसने टिकट कलेक्टर को वाइड ग्रीन मीन्स स्माइल, तो उसने एक बड़ी सी स्माइल दी किसको, टिकट कलेक्टर
द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you?" The ticket collector person said, "Sir, did you have a dog with you? You will have to pay for it accordingly." उन्होंने ऐसा कहा कि टिकट कलेक्टर ने कहा कि अगर आपके पास डॉग है तो आपको कुछ पैसे या आपको फाइन भरने होंगे. In when did grandfather take Toto out of the bag? In when did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped? Quadruped means जो 4 legs वाले होते हैं. ओके, एनिमल का जो पीछे के 2 लेग्स होते हैं, द हिंड लेग्स इज नोन एज द 4th leg. टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय टिकट कलेक्टर. टिकट कलेक्टर के हिसाब से टोटो कौन था? अ डॉग. एंड 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर. कि हाउ मच? 3 rupees. 3 rupees फाइन भरने पड़े थे. 3 rupees जो ग्रैंडफादर थे उनको टिकट कलेक्टर को देने पड़े थे. किसकी वजह से? टोटो की वजह से. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टू from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" अब क्या हुआ? From his pocket our pet tortoise. अभी उनका जो pet tortoise था वो बोलने लगा, अब हमें कितना भरना होगा एनिमल्स के चार्जेस के लिए? कौन बोलने लगा? tortoise. Then grandfather just to get his own bag took from his pocket our pet tortoise and said, उन्होंने tortoise निकाला पॉकेट से और पूछने लगे कि अभी हम इस एनिमल के लिए हमें कितनी चार्ज पे करनी है. The ticket collector looked closely at the tortoise. अब वो टिकट कलेक्टर tortoise की तरफ एकदम घूर के ऐसे देखने लगा, पास से जाके prodded it with his forefinger. prodded यानी उसको पुश करने लगा उसके 4 finger से. Gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge. It is not a dog." तो grandfather को क्या बोला टिकट कलेक्टर ने? प्लीज मतलब he felt happy and triumphant means क्या बोलते हैं, आनंदित होकर उसने बोला कि नो सर, इसका कोई चार्ज नहीं है. he is not मतलब ये डॉग, it is not a dog. When Toto was finally accepted, the grandfather he was given a comfortable home in the stable. मतलब जब टोटो फाइनली एक्सेप्ट हो गया था बाय ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर ने जब टोटो को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, पहले तो ग्रैंडमदर से एज ए सीक्रेट छुपा के रखा था, लेकिन जब ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट कर लिया था तो उससे कहाँ जगह मिली रहने के लिए? स्टेबल में. स्टेबल मीन्स कैटल. वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी जिसका नाम था नाना. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अब उसे विजिट दी ये देखने के लिए कि yes, टोटो कंफर्टेबल है. To his surprise, he found Nana without apparent cause, means visible cause, pulling at her rope and trying to keep her head as far as possible from a bundle of haze. मतलब बंडल ऑफ हेज मतलब जितने ग्रास रखे उससे वो अपना सर जो रोप बांधी हुई उससे वो दूर रख रही है. ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस. ओके, उसपे ऐसे उसको मारा. एंड शी जर्क्ड बैक. शी मूव्ड सडनली बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर. टोटो को उसके साथ ड्रैग करने लगी. ओके, हॉन्चेस इज हिंड पार्ट ऑफ एन एनिमल विथ 4 legs. ओके, he had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never became friends. मतलब that family donkey and जो टोटो थे वो कभी friends नहीं बने. और great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब उसकी एक great treat थी winter के टाइम पे, उससे एक large bowl of water मिलता था. Okay, treat is like special experience for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. उसके बाद के लिए उसे बड़े बाउल में नहाने के लिए पानी मिलता था. He would cunningly test, मतलब क्लेवरली वो टेस्ट करता था टेम्परेचर वो पानी का अंदर हाथ डाल के. Then gradually step into the bath. फिर वो नहाने के लिए उसमें जाता था. First one foot, then the other, as he had seen me doing. जैसे वो उसने देखा हो, ओके, जैसे उसने वो इसमें लिया हुआ है, या तो उसने ग्रैंडफादर को देखा हो, और वी आर सीइंग अबाउट रस्किंग बॉन्ड, जैसे उसने रस्किंग बॉन्ड को देखा होगा. Means the whosoever is a writer who is saying here as he had seen me doing, वैसे ही वो करता था. पहले चेक करता था, फिर पहले एक पैर अंदर रखता था. Until he was into the water up to his neck. जब तक वो नेक तक नहीं पहुंचे वो धीरे धीरे अपने स्टेप्स बढ़ाता था. Okay, once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. Now see, जैसे उसको एक बार कंफर्टेबल
कंफर्टेबल फील हो, वो क्या करता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स, सोप उसके हाथ में लेता था, ठीक है, या फिर उसके फीट पे लेता था, रब करता था उसके हिमसेल्फ ऑल ओवर उसकी बॉडी पे वो सारे सोप को रब करता था। फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड जितना वो नॉटी था उतना ही वो स्मार्ट भी था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था, वो हो सके इतना जल्दी दौड़ता था और किचन के जो फायर था वहां पे जाके वो खुद को वहां पे सुखा लेता था। If anyone laughed at him during this performance, अगर उसके इस परफॉर्मेंस पे अगर कोई हंसा, टोटो's feeling would be hurt, टोटो की जो फीलिंग थी वो हर्ट हो सकती थी, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बात। अब अगर एक बार कोई हंस गया तो टोटो ऑब्वियसली फिर वापस बात के लिए जब भी उसे भेजा जाएगा तो वो रिफ्यूज कर देगा, मना कर देगा बात के लिए। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। अभी नियरली सक्सीडेड मतलब वो जलने ही वाला था खुद को बॉइल करने से। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन फायर टू बॉइल फॉर टी एंड A large kitchen kettle had been left on fire, मतलब एक लार्ज किचन का जो एक बड़ा केटल था उसको एक फायर पे रखा हुआ था, ओके, ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी, चाय के लिए उसे रखा था गर्म करने के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, और कुछ अच्छा कर नहीं सके ऐसे वो टोटो खुद फाइंड कर रहा था। डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, उसने क्या डिसाइड किया कि उस केटल से वो लीड निकालेगा। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसको ऐसा लगा कि चलो ये ठीक ठाक गर्म है जिसे मैं नहा सकता हूँ। ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉइल, वो तब तक ठीक था, वो उसी के ऊपर बैठ गया, ओके, जब तक उसका सर उस पर स्टिक नहीं हो जाए, सॉरी बैठ नहीं गया, जब तक उसका सर उस पर स्टिक ना हो जाए। Okay, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out. उसका head sticking मतलब सिर्फ उसका सर बाहर था कीटल से। This was just fine for a while, थोड़ी देर के लिए ठीक था जब तक पानी बॉइल ना हो जाए, ओके, until the water began. Toto then raised himself a little, मतलब वो खुद जो कीटल में अंदर ही चला गया, उसका सिर थोड़ा ऊपर बाहर था तो उसने खुद को थोड़ा सा भी कीटल से ऐसे बाहर निकला हो। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन, वापस थोड़ा सा ऊपर आया, वापस बाहर उसको ठंड लगने लगी, सो अगेन ही वेंट डाउन। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए ही इज कमिंग अप देन ही इज गोइंग अगेन डाउन, थोड़े टाइम उसने वही किया, अंटिल ग्रैंडमदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। अभी जब तक ग्रैंडमदर आए नहीं और उसको होल्ड नहीं किया वो हाफ बॉइल्ड केटल से। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अगर हम बोले कि अगर मिस्चीवियस की सबसे बड़ा व्हाट इज सेम, अगर लार्ज पार्ट है ब्रेन का अगर किसी मिस्चीवियस से भरा तो उस दिन वो किसके लिए था, दैट वाज फॉर टोटो। ही वाज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो कोई भी चीजें थी उन सबको पीसेस में तोड़ देता था। Whenever one of my aunts came near him, कोई भी एक आंटी जब भी उसके पास आती थी, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it, मतलब वो पूरी कोशिश करता था कि वो उस ड्रेस में एक होल तो कर ही दे। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन लंच टाइम पे लार्ज डिश ऑफ पुलाव stood in center, डाइनिंग टेबल के सेंटर पे उसे रखा गया था। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. Okay, we entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. ग्रैंडमदर चिल्लाने लगी उसे वो देखकर और टोटो ने क्या कर दिया, उसके ऊपर वो प्लेट फेंक दिया। थ्रू अ प्लेट एट हर, वो जो प्लेट था वो उनके ऊपर फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, उनमें से जो सब आंटी, कोई भी आंटी है उनमें से एक आंट आगे आई, ओके, देन एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. उसने क्या किया, ले लिया पुलाव का डिश और विंडो से चला गया, लेकर वो विंडो से निकल गया, एग्जिट हो गया। We found him in the branches of jackfruit tree. अब वापस इन लोगों राइटर ने इन्हें कहाँ देखा टोटो को, जैकफ्रूट के ट्री पे। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, डिश अभी तक उसके आर्म्स में थी।
He remained there all afternoon. Gone Toto पूरा आफ्टरनून जैकफ्रूट ट्री पे ही था. Eating slowly through the rice, धीरे धीरे खाते हुए. Determined on finishing every grain, मतलब टोटो सोच रहा था एक एक दाना फिनिश करेगा, वो धीरे धीरे खा रहा था. And then in order to spite grandmother, means the evil intents, मतलब and in order to intently grandmother who had screamed at him, जो grandmother उस पे चिल्लाई थी, he threw the dish down from the tree. उसने क्या कर दिया, डिश जो थी वो वापस जैकफ्रूट ट्री से नीचे गिरा दी. And shattered with delight when it broke into 100 pieces. वो डिलाइट और बहुत ऐसे चैटेड हो गया जब उस प्लेट का पर्टिकुलर मीन्स वी कैन से 100 पीसेस यानी टुकड़े टुकड़े हो गए. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. अभी इसकी मिस्चीवियस से पता चल रहा है हमें कि टोटो एक ऐसा एनिमल है ही नहीं कि हम उसे एज अ पेट रख सकते हैं ज्यादा देर तक हमारे घर में. ऐसा यहाँ कहा गया. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दिस, ये ग्रैंडफादर को भी रियलाइज हो गया. We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes. अब हम ये कर नहीं सकते थे, हम बार बार हमारी डिशेस को तोड़ दें, हमारे क्लोथ्स फाड़ दें, हमारे कर्टन्स, हमारा वॉलपेपर वो सारा तोड़ दें, इतना बार बार हमको खराब करें, हम फिर लगाएं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ऐसा वो बता रहे. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 rupees. ग्रैंडफादर ने वापस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और वापस टोटो को दे दिया कितने रुपीज में, 3 rupees में. So done, only this much is there. Back you are having a glossary on your page number 11. Turnstile. What does turnstile means? A mechanical gate consisting of revolving horizontal arms fixed to a vertical post. It's shown in the picture, right? Next is halter, a rope. Okay, just remember that. Now, how does Toto come to grandfather's private zoo? Toto कैसे आता है? We'll discuss some question answers. There are total 5 questions. Okay. How does Toto come to grandfather's zoo? ग्रैंडफादर का जो प्राइवेट जू है उस पे टोटो कैसे आ रहा है? ग्रैंडफादर को एनिमल्स पसंद थे और एक दिन उन्होंने अट्रैक्टिव मंकी को किसके पास देखा? टोंगा ड्राइवर के पास. ओके, एंड उसका स्टार्टिंग के जो 2-3 लाइनें वो डिस्क्राइब की है. द मंकी वाज टाइड टू अ फीडिंग थ्रू एंड सीम्ड आउट अ प्लेस देयर. ओके, और ग्रैंडफादर को एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद है, हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर एनिमल्स. सो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उस टोटो को यानी उस मंकी को टोंगा ड्राइवर से वो लेके कितने रुपीज में वो लाए? उसे 5 rupees में. टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी. इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रीटी? टोटो प्रीटी था. इस तरह से एंग्लो इंडियंस वाला जो लाइन हमने पढ़ी थी दैट विल बी कमिंग हियर. नेक्स्ट इज व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ?